الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم لوگ پچھلے درس میں امرؤ القیس کے معلقہ میں یہ شعر پڑھ رہے تھے، فلما اجزنا ساحة الحی، یہیں سے پڑھنا ہے نا جی. پہلے میں اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے، امرؤ القیس کہہ رہا ہے، فلما اجزنا ساحة الحی وانتهى بنا بطن خبط ذی حقاف اقنقلی حصرت بفودی رأسها فتمایلت علی حظیم الکشح ری المخلخل. اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے، محفحفۃ بیضاء غیر مفاضۃ ترائبها مسقولۃ کالسجنجل. دیکھتے ہیں جتنا ٹائم ہوگا اس میں پڑھیں گے. اس میں جو ہے ہم نے اس کے شاید الفاظ مانے جانتے، پھر ایک بار اعادہ کر دے رہا ہوں. فلما اجزنا، اجزنا مانے اے قطعنا، یعنی پار کرنا. باب فعل سے آتا ہے یہ. اس میں صرفی تعلیلات ہوئی ہیں، ان ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کی اصل کیا ہے، کیسے تعلیل ہوئی ہے، یہ تیسری جماعت کا جو صرف ہے اس میں دیکھ سکتے ہو. قدر نمبر 7 اس میں فٹ ہوا. ساحتن مانے اس کی جمع آتی ہے ساحاتن، اور یہ ساحتن کا معنی میں نے بتایا تھا کہ گھر کا آنگن جو ہوتا ہے اس کو بھی ساحہ کہتے ہیں. گھر کے باہر گاؤں میں جو بیچ میں جو جگہیں چھوٹی ہوتی ہیں یا گھر کے آس پاس جو جگہیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کو بھی ساحہ کہتے ہیں، یعنی کہ میدان یا جو بھی کہہ رہے ہیں. تو یعنی کہ جس حصے میں کوئی عمارت نہیں بنی ہوتی ہے وہ ساحہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد الحی، حی مانے قبیلہ جمع احیاء، اور حیون کا دوسرا معنی بھی آتا ہے کہ وہ جو محلہ ہوتا ہے اس کو بھی حی کہتے ہیں، کہ محلہ جو ایریا ہوتا ہے. انتہا بہت سارے معنی ہیں اس کے. اس میں سے ایک معنی ہمیں لیں گے انفردہ کے معنی، تنہا ہونا، تنہائی میں ہونا، الگ ہونا. بطن، اس کے معنی میں نے بتایا تھا کہ بطن معنی درمیان یا پیٹ یا جو بھی معنی کر سکتے ہیں. بطن کا ایک اور معنی آتا ہے جو کہ پست زمین، المنخفض من الارض، پست زمین جو ہوتی ہے اس کو بھی بطن کہتے ہیں. جمع بطون، ابطون، بطنان. خبطن کے معنی، اس کا معنی بھی پست زمین. دونوں کا معنی بھی ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے. خبطن کے معنی پست زمین، جمع اخباتن، خبوتن. ذی حقاف، ذی یہاں پر ذو ذی ہے، وہ اسم ستہ مکبر والا ہے. حقاف اس کی واحد ہے حقفن، اور حقاف کہتے ہیں الرمل المعوج، یعنی کہ ریت کا ٹیلا جو ٹیڑھا میڑھا ہو، یعنی کہ جس کی اوپری والی سطح کیا ہے برابر نہ ہو، تھوڑا ٹیڑھا میڑھا ہو، تو اس کو کہتے ہیں حقاف. اقنقل، اس کے معنی مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ الرمل المتداخل، یعنی کہ ایسا وہ ریت جو ایک دوسرے میں بالکل وہ ہو گیا ہو، یعنی کہ جو تہ بتہ ہو. المتداخل، تہ بتہ ریت. اور دوسرا معنی ہے کشادہ جگہ، کشادہ وادی. کشادہ وادی اقنقل کے معنی ہے، کشادہ وادی. اسی معنی پہ ہم اس کا مفہوم کریں گے، کشادہ وادی. اس کے بعد آگے حقفن، جی ہاں، الرمل المعوج، ہاں نہیں، ٹیلے سب ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوتے ہیں. ریت کے ٹیلے، ریت کا ٹیلا دیکھے ہو؟ پہاڑ کی بات نہیں، پہاڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ریت کے ٹیلے بہت بار برابر بھی ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں. ریت کے ٹیلے اگر دیکھو گے تو ہاں ادھر جو ہے وہاں جو گئے سنابل ہے، وہاں اگر کوئی گیا ہوگا تو وہاں سنابل کے قریب میں 2-3 کلومیٹر کی دوری پر وہاں جب جاتے ہیں اور دلی کے اندر سائڈ میں، وہاں پر ایک ٹیلا ملے گا بہت بڑا ریت کا. اوپر چڑھو گے سب پورا برابر ملے گا. ٹھیک ہے جی. آگے آتے ہیں، پھر ایک لائن اور اس کا مفہوم کرتے ہیں، پھر جیسا ٹائم رہے گا. آگے یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ حصرت بفود رأسها، حصرت، حصر یحصر باب ضربہ سے آتا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا، یعنی کہ مضبوطی سے پکڑنا اور اس کو اپنی طرف کھینچنا، یعنی کہ القبض
वशद्द वलजज़्ब, अलक़ब्ज़ पकड़ना, शद्द मजबूती से पकड़ना, और वलजज़्ब और उसको फिर क्या है अपनी तरफ खींचना, यानी कि पकड़ किसी चीज़ को अच्छे से पकड़ करके अपनी तरफ खींचना, ये माना होता है हसरा का। कोई भी चीज़ हो सकती है, यहाँ मफ़हूम में आएगा कि किस माने में ये माना मुराद ले रहा है। और जैसे कोई आदमी टहनी है, किसी टहनी को, किसी दरख्त है उसकी शाख, किसी टहनी को जो है मजबूती से हाथ से पकड़ करके उसको अपनी तरफ अगर खींचे, बगैर उसको तोड़े हुए खींचे, तो इसको भी हसर कहा जाएगा। यहाँ पर जो हसर मुराद रह रहा है ये अभी आगे आएगा क्या मुराद ले रहा है। ये उसकी जो महबूबा है, उसकी जो बाल हैं, बाल के दोनों किनारे, बाल की जो दोनों चोटियाँ हैं, उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये मुराद लेगा, अभी आगे आएगा। बिफ़ौदै रअसिहा, बिफ़ौदै तस्निया है ये, क्योंकि यहाँ पर बा हर्फ जर दाखिल है, असल में फौदाने है, लेकिन जर आ गया तो फौदैने हो गया, और चूँकि मुज़ाफ़ है इसलिए नून इराबी यहाँ पर गिर गया है। फौदुन इसका वाहिद है, और फौदुन के माने होते हैं कि कनपटी के ऊपर, यानी कि जो कनपटी, जो कान के ऊपर जो बाल होते हैं ना, उसको कहते हैं फौदुन, यानी कि जुल्फ़ कह लें या जो भी कह लें। तो आदमी के मतलब जो कान के ऊपर जो ये बाल होते हैं उसको कहा जाता है फौदुन। आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, कान के ऊपर वाला बाल या जुल्फ़, और इसकी जमा आती है अफ़वादुन। बेफ़ौदै रअसिहा, बेफ़ौदै रअसिहा, तो ये फ़ौदे मुज़ाफ़ हो जाएगा और रअसिहा मुज़ाफ़ हो जाएगा। और चूँकि ये मुज़ाफ़ है उसी वजह से मैंने बताया कि असल में ये है फ़ौदैने, नून यहाँ से गिर गया है इजाफत की वजह से, और फौदे है हालत जर में है, तस्निया है क्योंकि उसमें बा हर्फ जर दाखिल है। फ़तमायलत, तमायलत ऐ मालत, यानी कि उसको झुकाया तो मालत, वो झुक गई, उसको अभी माना कहें फिर होगा। हज़ीम अलकशी, हज़ीमा यहज़मु ये बाब समिया से आता है, सिफत का सेगा है, जिसके माना होता है लागर होना, दुबला होना, पतला होना, ये माना है हज़ीम। और कशहुन होता है, कशहुन कहते हैं कि यानी कि पहलू, कशहुन माने पहलू क्या होता है कि दायां पहलू बायां पहलू, यानी कि आदमी के जो ये जो आदमी की जो पसलियां होती है ना, अगर इसको दाएं साइड पे अगर देखोगे हाथ रख करके, तो ये जो पसलियां जा करके जहां पर एकदम नीचे ख़त्म हो जाती हैं, वहां पर थोड़ा सा हिस्सा फिर मिलेगा कि वहां कोई हड्डी नहीं होगी। उसके बाद और नीचे जाओगे तो वहां पर फिर वो पैर से जुड़ी हुई हड्डी वहां शुरू हो जाती है। तो पसलियां जहां पर ख़त्म होती हैं वहां से लेकर के, और फिर जो अज़मुल वरिक उसको हम कहते हैं, यानी कि जो जहाँ से पैर का मतलब रिलेटेड जॉइंट हड्डी शुरू होती है, तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, वही होता है कशहुन। और एक दायां कश होता है और एक बायां कश होता है, यानी कि दो पहलू होते हैं कि दायां पहलू बायां पहलू। यहाँ पर अलकश एक ही कश मतलब जिक्र किया है, एक ही पहलू, लेकिन मुराद ये दोनों ही है। आदमी जैसे कहता है कि कहल तो आईनी, मैंने अपने आँख में सुरमा लगाया, मुराद उसका होता है कहल तो आइनैया, मैंने अपने दोनों आँखों में सुरमा लगाए। ऐसे ही कश बोला है लेकिन दोनों मुराद हैं। और इससे मुराद क्या है, यानी कि कश का, यानी कि दायां पहलू भी क्या है, लागर हो, दुबला हो, पतला हो, बायां भी दुबला पतला हो, तो इस तरह से पूरा जो ये जो पेट का ये जो एरिया है ये पूरा कवर हो जाएगा। और इससे मुराद क्या होगा, यानी कि जिसकी ये जो ये कमर है उसी को कमर भी कहते हैं, तो इसका माना हो जाएगा हज़ीम अलकश, यानी कि पतली कमर वाली है, पतली कमर वाली, ये माना हो जाएगा हज़ीम अलकशी, हज़ीमन कशहुहा। असल में अभी फिर आएंगे तो असल में है हज़ीमन कशहुहा, यानी कि जिसकी कमर क्या है, पतली है। और समझ में आ रही है बात। उसके बाद है रैया, रैया एक रैया पहले आ चुका है, इससे पहले क्या कहीं आया याद है, कहीं पिछली लाइन में आया है, हाँ उसमें आया हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है नसीम अस्सबा जाअत बिरैयल करनफुली, तो वहाँ पर जो रैया आया था वो रायहतुन के माने में था, खुशबू के माने में। यहाँ पर जो रैया है उसको मैं बता रहा हूँ ये क्या है। एक फेल आता है रविया यरवा, यानी कि सैराब होना, उसी से अगर बाब इफ्तियाल से लाओगे तो इर्तवा हो जाएगा। जैसे कहेंगे इर्तवैतु, शरिबतु हत्ता इर्तवैतु, मैंने पानी पिया यहाँ तक कि मैं सैराब हो गया। तो इसका जो सुलासी आता है रविया यरवा, सैराब होना, ठीक है। और इसका जो बोला अफ़ाल का, अगर हम इसके इससे अफ़ाल के वजन पर लाएंगे है ना,
अरवा, कोई कहेंगे कि फलां सैराब है या फलां चीज़ सैराब है तो कहेंगे अरवा, मुज़क्कर के लिए अरवा लाएंगे, और मुअन्नस के लिए लाएंगे फ़अला के वज़न पर, है ना, फ़अला। तो अफ़अल अरवा जो है अफ़अल के वज़न पर हो जाएगा मुज़क्कर के लिए, और फ़अला जो हो जाएगा फ़अला मुअन्नस के लिए, अफ़अल फ़अला। तो इसकी असल क्या है, असल में जो है इसकी जो सुलासी है रे वाव ये है। तो यहाँ पर जो है इसका फ़अला के वज़न पर कहेंगे रौया, रौ रे वाव ये, और उसके बाद अलिफ फ़अला, फ़ फे ऐन लाम, उसके बाद या के ऊपर जो अलिफ है इस वज़न पर लाएंगे रैया को, तो बनेगा रौया फ़अला। तो ये असल में है रौया है, फ़अला के वज़न पर, मुअन्नस का सेगा है ये, यानी कि अरवा मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है। तो फिर इसमें क्या हुआ है, रैया कैसे बना है, ये रैया ऐसे बना है, इसमें कायदा इसका सरफी ताली है, सरफी वो हुआ है, सरफी कायदा कहता है कि अगर वाव और या किसी कलमे में इकट्ठा हो जाए और अगर उनमें से पहला साकिन हो तो उस वाव को या से बदल करके उस दूसरी या में इदगाम कर देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, रौ या, पहले वाव आया हुआ है, उसके बाद एक या आई हुई है और उनमें से एक साकिन है, यानी कि वाव साकिन है, तो क्या किया जाएगा, वाव को या से बदलेंगे और फिर या में इदगाम कराएंगे, हो जाएगा रैया। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा रैया, मुअन्नस कैसे का रैया, और रैया के माने क्या हो जाएगा, सैराब, यानी कि मतलब जिसको सैराब किया गया हो, यानी कि सैराब है या, और यहाँ पर जो मुराद ले रहा है मुखलखल उसके सामने लगाया हुआ है, तो अभी मुखलखल के साथ इसको जोड़ेंगे तो क्या माना होगा, अल मुखलखल, ये खलखाल माने होता है पाजेब, खलखालुन इसको पाजेब को कहते हैं। पाजेब क्या होता है कि पैर में पहना जाता है एक जेवर, ऐसे कड़ा टाइप का, मतलब पहले औरतें पहनती थी, अब तो वो रहा नहीं चलन, लेकिन पैर में जो पिडली होती है उस पिडली पर जो हो सकता है अभी मतलब बहुत दूर की जो देहातों में जंगलों में पहनती हूँ, मतलब जो है होता है ऐसे हो सकता है, तो जो पिडली होती है यानी कि पिडली जो होती है उसी पिडली के जगह